Hello everyone. I'm going to start topic properties of binomial coefficient. Okay, properties of binomial coefficient. Now, the first thing we will be studying here in this topic is some type of basic formulas. Okay, so let's start. We already know that 1 plus x की power n is what? nc0 plus nc1x plus nc2 square plus nc3 x की power 3 till ncn x की power n. So if I say put x is equal to 1, okay, so left hand side will become 2 की power n, and what will be on right hand side? nc0 plus nc1 plus nc2 till ncn. So this is your first formula. Okay, that sum of all the binomial coefficients from nc0, nc1, nc2 till ncn will be 2 to the power n. Okay, for example, if I say 5c0, 5c1 till 5c5, so what it will be equal to? 2 to the power n. So here the value of n is 5, and it is including all the binomial coefficient from 5c0, 5c1 till 5c5. So it will be equal to 2 to the power 5, that is 32. Okay. Sometimes, let's say for example, we have been asked 10c2 plus 10c3 plus 10c4 till 10c10. Okay. Now, what we will do? First of all, which terms are missing? So 10c0 and 10c1 are missing. Okay, so it can be equal to, see here, from the first formula I can say that this series is from nc2 till ncn. Okay, so it will be basically equal to 2 की power n, that is 10, minus this nc0 and nc1 will come on which side? Left hand side. Okay, so 2 की power 10 minus 10c0 minus 10c1. So 2 की power 10 will be what? 1024. Sorry. So 2 की power 10 will be 1024. Okay, minus 10c0 is 1 and minus 10c1 is 10. So it will be equal to 1013. Okay, so this is your answer. Okay, now moving to the next one, second one. Okay, now put x is equal to minus 1. Okay, so left hand side will become 0. Obviously 1 minus 1 to the power n, 0 to the power n is 0. Now what will be on right hand side? nc0 minus nc1 plus nc2 minus nc3 till minus 1 to the power n ncn. So what can I say from this expression? That if alternate plus minus sign will be there, if alternate plus minus sign would be there, then the sum of all the binomial coefficients including the alternate sign will be equal to 0. For example, if I say 7c0 minus 7c1 plus 7c2, okay, till 7c7. Okay, 7c7 is equal to what? So now you can see here that alternate plus minus would be there. Here it will be minus 7c3, of course, and it is including all the binomial coefficient from 7c0, 7c1, 7c2 till 7c7. So it will be equal to 0. Now if someone will ask, let's say 9c2
minus 9c3 plus 9c4 till minus 9c9. Then it will be equal to what? So we will search for missing term. Okay. So first of all, the answer would be 0 if it has included a 9c0 minus 9c1. Okay. But 9c0 minus 9c1 is not here. So it will come on right hand side. So minus 9c0 plus 9c1. So it will become minus 1 plus 9, that will be equal to 8. So till now we have studied two formulas. Okay. NC0, NC1, NC2 till NCn is equal to 2 to the power n, and NC0 minus NC1 plus NC2 minus NC3 till minus 1 to the power n, NCn is equal to C. Okay. Now we will use this to further derive some results based on these. Okay. So you have to remember this one, right? Now move forward. So let's see. NC0 plus NC1 plus NC2 plus NC3. Okay. Like this till NCn. It is equal to 2 ki power n. We already know. And second series, NC0 minus NC1 plus NC2 minus NC3. Okay. Minus 1 to the power n, NCn is equal to 0. Now, let's say this is equation A, this is equation B. Now, if I say add equation A and B, okay. So what it will become? It will become 2 into NC0, NC1 minus NC1 will be cancelled out, okay. Plus 2 NC2, similarly again NC3 will be cancelled out. So next term will be NC4, just like this. And on right hand side it will become 2 ki power n. So if I take 2 common, then it will become NC0 plus NC2 plus NC4, okay. And here on right hand side it is 2 to the power n. So now if I say sum of even binomial coefficient like NC0, NC2, NC4, NC6, ठीक है. तो ऐसे जितने भी टर्म्स होंगे उनके सारे जो सम होंगे वो क्या होंगे? 2 की पावर n by 2. It means you can remember like half of 2 की power n. Okay. So it will be equal to 2 की power n minus 1. So this is also a result. So it will be your third result. Okay. Now, अगर मैं ये बोलूं कि इसको आप सब्ट्रैक्ट करो, a माइनस b करो, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ठीक है. इस बार क्या बचेगी बताओ? इस बार ये NC0 वाले कैंसिल होंगे, NC2 वाले कैंसिल होंगे. ठीक है. इवन वाले कैंसिल हो जाएंगे. बचेंगे क्या? ऑड वाले, यानी NC1, और वो भी क्या बचेंगे? ट्वाइस टाइम्स बचेंगे, 2 टाइम्स. तो 2 इंटू NC1, NC3, NC5, NC7. तो जितने भी ऑड वाले हैं उनका जो सम होगा, और बताइए राइट हैंड साइड क्या आएगा? 2 की पावर n माइनस 0, यानी सेम 2 की पावर n. सो आप देख सकते हो कि ऑड वाले का भी जो सम आएगा वो क्या आएगा? इधर से 2 हटाया मैंने, इधर 2 डिवाइड किया, दैट इज 2 की पावर n माइनस 1. ओके. सो दिस इज योर फोर्थ रिजल्ट. ओके. यानी क्या क्या बातें हो गई? जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट है NC0, NC1 से लेकर NCn तक, उनका सम जो होगा वो 2 की पावर n होगा. अगर अल्टरनेट प्लस माइनस के साथ है और सारे अवेलेबल हैं, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2, ठीक है, ऐसे, तो वो 0 होगा उनका सम. इवन वाले अगर सिर्फ लें हम बाइनोमियल कोफिशिएंट 0, 2, 4, 6 ऐसे, तो वो क्या होंगे? हाफ ऑफ 2 की पावर n. ओके. यानी हाफ ऑफ सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, that is 2 की power n minus 1. Similarly, same result holds for odd binomial coefficient. Okay, hope you got it. Now let's solve couple of question. Okay, so let's take question number 1. Now if I ask from you that what is summation of 21 CR
फ्रॉम r इज इक्वल टू 2 to 10। ठीक है, तो देखिए समझिएगा थोड़ा, ये क्या हो जाएगी 21C2, 21C3, 21C4, ऐसे ही कहाँ तक 21C10 तक। ठीक है, ओके। नाउ अब हमको तो ऐसा सीरीज पता नहीं है, ठीक है, हम लोगों ने तो ऐसा सीरीज कोई पढ़ा नहीं है, तो जो पढ़ा है उसके बेसिस पे सोचते हैं। क्या पढ़ा है हम लोगों ने 21C0, 21C1, 21C2, ठीक है, फिर 21C3, ऐसे ही अगर 21C21 तक रहे तो वो क्या होती है 2 की पावर 21। ठीक है, अभी अभी जस्ट मैंने पढ़ा। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये तो 10 तक ही फिनिश हो जा रही है, तो ऐसा क्यों? तो यही पे थोड़ा ऑब्जर्व करना है। देखिए समझिएगा 21C0, 21C1, 21C2, 21C3, चलिए हम आ गए 21C10 पे। अच्छा अगला क्या होगा जी 21C11 होगा, फिर 21C12 होगा, ऐसे ही 21C21, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 21। ठीक है, ओके। नाउ अगर मैं बोलूं, आपने फॉर्मूला पढ़ा है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। ठीक है, आप देखो ध्यान से देखो इसको, 21C11 क्या होगा 21 माइनस 11 10, ये कितनी हो जाएगी 21 माइनस 12 9, एंड सिमिलरली मूविंग ऑन इट विल बी इक्वल टू 21C0। ओके, तो फिर आप बोलोगे सर ये तो सेम हो गया ना, मतलब यहां तक की जो सीरीज थी सेम सीरीज यहां भी आ गई। ठीक है, यानी मैं इसको ट्वाइस ऑफ दिस बोल दूं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ट्वाइस ऑफ 21C0, 21C1, 21C2 टिल 21C10 इज इक्वल टू 2 की पावर 21। नाउ यहां से 2 मैंने हटाया इसको, तो इधर आ गए 2 की पावर 20। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है 2 से लेकर 21C2, C3, C4 से लेकर 10 तक, यानी मेरे को ये 21C0, 21C1 को रिमूव करना होगा, तो उसको राइट हैंड साइड लेकर चले जाएंगे। तो 21C2, 21C3 टिल 21C10 इट इज इक्वल टू 2 की पावर 20 माइनस 21C0 क्या होगा 1 माइनस 21C2 क्या होगा, सॉरी 21C1 को लाना इधर, तो वो क्या होगा 21, तो ये आपकी क्या हो जाएगी वैल्यू 2 की पावर 20 माइनस 20। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। होप यू गॉट इट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड में समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 2 to n r into NCR divided by n minus 1 CR minus 1 plus n minus 1 CR minus 2, इस सीरीज की आपको सम निकालनी है। इसमें बेसिक फॉर्मूले जो होंगे उनकी जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो देखिए इसको n माइनस 1 CR माइनस 1 प्लस n माइनस 1 CR माइनस 2, ये क्या हो जाएगी, ये देखिए सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जो ऊपर में दिख रहे हैं उसको एक इंक्रीज कर देते हैं, तो n माइनस 1 को इंक्रीज 1 बाई 1 कीजिएगा तो ये n हो जाएगा। यहाँ पे जो ग्रेटर होता है उसको क्या करते हैं ले लेते हैं। ठीक है, तो r माइनस 1 और r माइनस 2 में ग्रेटर कौन है r माइनस 1, so it will be equal to NCR minus 1. Now the question reduces to summation r into NCR upon NCR minus 1. Okay, now r is equal to 2 to n। अब आप ध्यान से देखो तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि रेशियो ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव क्या होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो देखिए इसमें क्या करते हैं NCR अपॉन NCR माइनस 1 क्या होता है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो आप, तो n माइनस r प्लस 1 बाई यहाँ पे जो r है उसको नीचे लाओ। ठीक है, चलिए इसका यूज कीजिए, तो समेशन r इंटू
n माइनस आर प्लस 1 बाई आर, ये आर कैंसिल आउट हो गया, r इज इक्वल टू 2 से लेकर n तक। नाउ अब यहाँ पे देखो n और 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो इनको एक साथ कर लो आप, ठीक है। तो n प्लस 1 माइनस आर, अब बताओ क्या होगा, ये n प्लस 1 तो कांस्टेंट है, तो इसका समेशन 2 से लेकर n तक क्या हो जाएगा बताइए, ये क्या हो जाएगा 2 से लेकर n तक, 1 से लेकर n होता तो n होता ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है। टोटल कितने टर्म्स हैं 2 से लेकर n तक, n माइनस 1 टर्म्स हैं, ठीक है। चलिए माइनस समेशन ऑफ r क्या होता है जी, देखिए 2 से लेकर n तक का सम हो जाएगा, यहाँ पे r की वैल्यू आप 2 रखो, फिर 3 रखो, ऐसे ही कहां तक रखोगे आप, n तक रखोगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी बताइए, देखिए n प्लस 1, n माइनस 1 तो ऑलरेडी है, ठीक है। इधर फिर क्या है माइनस 2 से लेकर n तक का सम, तो हम क्या कर लेते हैं 1 से लेकर n तक का सम कर लेते हैं, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सिंपल। तो ये n स्क्वायर माइनस 1 माइनस ये हो जाएगी n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 माइनस 1। अब इसी को अपन सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n बाई 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n बाई 2, तो ये हो जाएगी n स्क्वायर माइनस n बाई 2 यानी n इंटू n माइनस 1 बाई 2। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ अ सीरीज इज गिवन टू यू nc0 upon 2 plus nc1 by let's say it is given as 6 plus nc2 upon 12, okay, and it is till n plus 1 terms, ठीक है। कभी भी इस टाइप का आपको सीरीज दिखे, कभी भी, तो सबसे पहले इसमें कोशिश क्या करनी है आपको कि आप इसका rth टर्म लिखो, क्या लिखो, rth टर्म लिखो, ठीक है। तो जनरल टर्म इसका क्या होगा आप बताओ, सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि tr यानी rth टर्म क्या होगा, तो पैटर्न ऑब्जर्व करोगे आप कि आखिर ये पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर में तो मेरे को समझ में आ रहा है कि nc0 nc1 nc2, ठीक है, बात आई समझ में। तो यानी मैं बोल सकता हूं कि ऊपर में NCR है, R की वैल्यू 0 1 2 वेरी कर रही है, ठीक है। तो सुविधा के लिए हम लोग क्या लिख लेते हैं यहाँ पे R प्लस 1 टर्म लिख लेते हैं, ठीक है। आप देखिए, अब बताइए यहाँ पे क्या होगा NCR, कोई प्रॉब्लम, देखिए फर्स्ट टर्म के लिए आप क्या पुट करोगे, R की वैल्यू 0 पुट करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे NC0 है और ये T1 है, ठीक है। फिर R इज इक्वल टू 1 पे T2 आ जाएगा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डिनोमिनेटर में क्या पैटर्न है आप देखो, 2 है, 6 है, 12 है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको दिखेगा 2 इंटू 1, 6 3 इंटू 2, 12 4 इंटू 3, ओके। तो अब इसको कैसे बोले, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 0 है तो ये 1 है, 2 है, ध्यान से समझना, ये 1 है तो यहाँ पे देखो एक इंक्रीज किया, फिर एक और इंक्रीज किया, यानी अगर यहाँ पे R है तो एक इंक्रीज करके R प्लस 1, फिर इससे इंक्रीज करके R प्लस 2, ठीक है। अब मैं इस सीरीज को कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, समेशन NCR अपॉन R प्लस 1 इंटू R प्लस 2, R की वैल्यू कहां से बताइए, NC0 से लेकर n प्लस 1 टर्म्स तक। तो देखिए फर्स्ट टर्म में 0 है, सेकेंड में 1 है, थर्ड में 2 है, तो n प्लस 1 में यहाँ पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। नाउ दिस होल सीरीज इज रिड्यूस टू दिस एक्सप्रेशन। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ this expression. Now again we will use some property of NCR. So let's see here, we know a property of NCR that if I want to break this,
So it will become n upon r, n minus 1 cr minus 1. We already knew this. Okay. So now if I say n plus 1 cr plus 1 के केस में अगर यही काम आप करोगे तो क्या होगी, n प्लस 1 बाई आर प्लस 1 और एक डिक्रीज होके एन सी आर। तो अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक एन सी आर बाई आर प्लस 1 है, ये देखो यहाँ भी आ रही है एन सी आर बाई आर प्लस 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, एन सी आर बाई आर प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बिकम n प्लस 1 सी आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ओके, सो आई एम रिप्लेसिंग विद दिस, समेशन r इज इक्वल टू 0 से n। ठीक है, देखो एन सी आर अपॉन आर प्लस 1 की जगह क्या मैं रख देता हूं, n प्लस 1 सी आर प्लस 1 बाई n प्लस 1, n प्लस 1 सी आर प्लस 1 बाई n प्लस 1 और ऑलरेडी r प्लस 2 है। अच्छा, फिर कुछ कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इस बार किसके बारे में सोचेंगे, n प्लस 2 सी आर प्लस 2, इसमें से आप इसको रिमूव करो n प्लस 2 को और r प्लस 2 को, तो क्या हो जाएगा ये n प्लस 2 r प्लस 2। अब ये दोनों एक एक डिक्रीज हो जाएंगे, n प्लस 1 सी आर प्लस 1। अब देखो यहाँ पे भी आपके पास है ना n प्लस 1 सी आर प्लस 1 अपॉन r प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी n प्लस 2 सी आर प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाई n प्लस 2। सो मैं चाहूं तो इसको इससे रिप्लेस कर सकता हूं, तो बिल्कुल मैंने रिप्लेस कर दिया। क्या हो जाएगी ये n प्लस 2 सी आर प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। अब देखो आप ये n प्लस 1 n प्लस 2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर लिया इसको हमने सॉरी, ठीक है ये बाहर हो गया। समेशन क्या बचा अपने पास, n प्लस 2 सी आर प्लस 2, 0 से लेकर कहां तक जी, n तक। अच्छा, अब पुट करो थोड़ा, 0 पुट करो, देखिए सीरीज क्या आएगी, n प्लस 2 c2 n प्लस 2 c3, ऐसे ही कहा था n प्लस 2 c n प्लस 2 तक n पुट करोगे यार की वैल्यू। अच्छा, इसमें मिसिंग क्या है जी, फिर वही n प्लस 2 c0 मिसिंग है और n प्लस 2 c1 मिसिंग है, तो अगर वो होते तो वैल्यू क्या होती 2 की पावर n प्लस 2, बट वो नहीं है तो उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो n प्लस 2 c0 की वैल्यू 1 और n प्लस 2 c1 की वैल्यू n प्लस 2, यानी ये सीरीज जो है ये किसके इक्वल है 2 की पावर n प्लस 2। ठीक है, ये -1 -2 -3 हो जाएगा, तो -n-3 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, दिस इज योर आंसर। ठीक है, एक बार आप लोग खुद से भी कर लेना, क्लियर है ना, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n r क्यूब इंटू n प्लस 1 सी आर प्लस 1 माइनस समेशन r इंटू n प्लस 1 सी आर प्लस 1, r इज इक्वल टू 0 टू n। ठीक है, ये नेक्स्ट समेशन ऑफ r स्क्वायर माइनस 1 एन सी आर। ठीक है, r is equal to 1 to n, and the third one is a series 4 into nc1 plus 7 into nc2 plus 10 into nc3 plus 13 into nc4 up to n terms। ठीक है, इसकी आप वैल्यू निकाल। ठीक है, so I will give some hint, okay, for all the 3 questions। ठीक है, पहले देखो आप, पहले तो स्पेशल सीरीज में आपको बता देता हूं। ठीक है, थोड़ा ऑब्जर्व करना। फर्स्ट वन, मान लो आपसे कोई पूछे NC1 2 इंटू NC2 3 इंटू NC3 टिल n इंटू NCn। मैंने क्या बोला, कभी भी इस टाइप के सीरीज में क्या करना है आपको, जनरल टर्म लिखना है। ठीक है, पैटर्न ऑब्जर्व करो आप, पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो आपको सिंपली दिख जाएगा कि ये NCR है और यहाँ पे एक R है। देखिए 3 3 2 2
1 है ना ऑलरेडी, एंड सी एन। तो कहाँ से ये स्टार्ट है, आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी, एन तक जाएगी। अच्छा, अब फिर ये प्रॉपर्टी लगाओ आप एनसीआर का, एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस। ठीक है, ऐसा क्यों, एक बार करके देखो, समझ में आ जाएगा क्यों मैं बोल रहा हूँ। एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, देखो ये आर कैंसिल हो गया ना, और एन कांस्टेंट है तो बाहर, तो एन इंटू समेशन 1 से लेकर कहाँ तक, एन तक, एन माइनस वन सी आर माइनस वन। अब देखो आर इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 0 आएगा, 2 पुट करोगे तो 1 आएगा, एन पुट करोगे एन माइनस वन, यानी सारे अवेलेबल हैं। तो यानी इसकी जो वैल्यू होगी समेशन की, वो 2 की पावर एन माइनस वन हो जाएगी। तो वो क्या आ जाएगी फाइनल आंसर, एन इंटू 2 की पावर एन माइनस वन। तो देखो, आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो। ठीक है, याद रहे तो अच्छा है। ठीक है, बड़े बड़े जो क्वेश्चन होंगे ना, लॉन्ग क्वेश्चन थोड़े, तो उनमें आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो इफ यू रिमेंबर दिस। ओके, सेम इस टाइप की एक और सीरीज है, जस्ट लाइक एन सी 1/1, एन सी 2/2, और यहाँ पे 2 कर लो आप, यहाँ पे 3 कर लो, और एक और ऐड कर लो एन सी 0/1। ठीक है, एन सी 3/4। ठीक है, ऐसे ही एन सी n/n+1। तो फिर वही बात, मैंने क्या बोला है, पैटर्न ऑब्जर्व करो आप। तो अगर ऊपर में एनसीआर बोलते हो न्यूमरेटर में, तो देखो 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 है, 1 है तो 2, यानी एक इंक्रीज कर दो तो r+1। ठीक है, समेशन r इज इक्वल टू कहाँ से जी, देखिए 1 है 2 है तो 1 के लिए 0 पुट करना पड़ेगा, और n+1 के लिए n पुट करना पड़ेगा। अब क्या करें, हाँ अभी अभी मैंने बताया ना कि कभी भी इधर डिनोमिनेटर में r+1 आ जाए, यानी इससे एक ज्यादा आ जाए डिनोमिनेटर में, तो आप इसके आगे वाली एक बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखो, इसको एक बार ब्रेक करके देखो, तो ये क्या हो जाएगी एनसीआर। अब यहाँ से आप NCR/r+1 को पिक कर लो, ये किसके इक्वल हो जाएगी, n+1 CR+1/n+1। ठीक है, इसको आप लिख लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n+1 CR+1, और बताओ n+1 तो कांस्टेंट है, ये आ गया बाहर। ठीक है, अब देखो आप 0 पुट करो तो 1 आएगी, 1 पुट करोगे तो 2 आएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये क्या है, n+1 C1 प्लस n+1 C2 से लेकर n+1 CN+1 तक, यानी मिसिंग क्या है इसमें, n+1 C0। तो अगर नहीं होता तो 2 की पावर n+1, और मिसिंग है तो उसको राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो n+1 C0 वो क्या होगी 1, तो यानी हो जाएगी 2 की पावर n+1 -1/n+1। ठीक है, इसको भी आप चाहो तो याद रख सकते हो। क्या आ गया फाइनल रिजल्ट, NCR/r+1 2 की पावर n+1 -1/n+1। कहां से कहां तक जी, 0 से लेकर n तक। ठीक है, इसके और भी तरीके हैं, डिफरेंशिएशन के थ्रू, इंटीग्रेशन के थ्रू। ठीक है, बट उसके बारे में आप लोगों को उतना आइडिया है नहीं, इसलिए मैं उसको भी रहने देता हूँ। ठीक है, तो अब इन दोनों सीरीज के बेसिस पे आप चाहो तो इन तीनों को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके ओके, ठीक है, फिर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके ओके, थैंक यू।